لائنز آپ نے دیکھیں بلیٹن کا آغاز کریں. آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام. شہری اب سستے علاج معالجے کی سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے. صحت سہولت پروگرام کے لیے منتخب اسپتالوں کی فہرست جاری کر دی گئی. فیصل آباد کے 16 اسپتال لسٹ میں شامل. پنجاب حکومت کی جانب سے صحت سہولت کارڈز کے لیے منتخب ہونے والے ہسپتالوں کی لسٹ جاری کر دی گئی. اب شہری متعلقہ ہسپتالوں سے صحت سہولت کارڈ کی بدولت علاج معالجہ کروا سکیں گے. ضلع فیصل آباد کے 16 ہسپتالوں میں راٹھور ہسپتال، پینم، سگرا صدیق، مجاہد، فیصل آباد انٹرنیشنل ہسپتال، خیر النساء ہسپتال، مقصود ضیاء ہسپتال و دیگر شامل ہیں. شہری اب صحت سہولت کارڈز کے ذریعے ہر قسم کی ایمرجنسی، گردوں کے ڈائلائسس، دل کی بیماریوں اور اعضاء کا نکارہ ہونے کے ساتھ دیگر بیماریوں کا منتخب شدہ ہسپتالوں سے 7,20,000 روپے تک کا فری علاج کروا سکیں گے. منتخب شدہ ہسپتالوں کی لسٹ میں فیصل آباد کے ساتھ جنگ کے 8، ٹوبہ کے ساتھ چنیوٹ کے 4 ہسپتالوں کو بھی منتخب کیا گیا ہے. کیمرہ مین کے ساتھ حاشر وڑائچ، فیصل آباد. گاڑیوں کی سیل ایک ماہ میں 11% گر گئی. گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ پریشانی کا شکار تاجروں کا کہنا ہے کہ گاڑیوں پر ایکسائز ڈیوٹی اور GST ختم کیا جائے. ایک طرف ڈالر کی بڑھتی قیمت تو دوسری طرف شرح سود میں اضافہ. گاڑیوں کی سیل ایک ماہ میں 11% کم ہو گئی. کار شو روم ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ بنا گاڑیاں فروخت کیے شو روم کے رینٹ جیب سے دے رہے ہیں. کام تک نہ ہونے کے برابر ہے. اس ویک میں جو پچھلا ویک گزرا ہے، اس ویک میں 3 شو روم ہیں جو چھوڑ کے اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے ہیں. اس کا ریزن سر شو روم کا 1 لاکھ روپے کا مہینے کا خرچہ ہے. سر 6 ماہ سے ہم دے رہے ہیں جیب سے، 1 روپیہ بھی کما نہیں رہے، سروائیو نہیں کر رہے. کوئی 1 ماہ 2 ماہ گزرے گا، کوئی اور 4-6 شو روم بند ہو جائیں گے. گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ تاجر کہتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیحات میں اب گاڑی خریدنا نہیں رہا. ہر کوئی 2 وقت کی روٹی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جس کے باعث سینکڑوں تاجروں کا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز پہ غور کرے. FED میرے خیال میں تو انہیں بالکل ختم کر دینی چاہیے، اور GST ہے وہ بھی کم کرنی چاہیے بڑی گاڑیوں پہ، کیونکہ گاڑی جو ہے وہ عام بندے کی رینج سے تو بہت باہر ہو گئی ہے. تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گاڑیوں پر ایکسائز ڈیوٹی اور GST ختم کیا جائے تاکہ ان کا روزگار تباہ ہونے سے بچ جائے. کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. سبزی کی کچھ قیمتیں بڑھی تو کچھ کم ہوئی. سبز مسالہ جات بھی عوام کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگے. خریدار مہنگے داموں انٹوں اور گوشت کی قیمتوں سے پریشان دکھائی دیے. خریداروں کا کہنا تھا کہ سبز مسالوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ادرک 210 روپے اور لہسن 270 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. گاجر 5 روپے کلو مہنگی ہو کر 30 روپے، مٹر 10 روپے کمی کے ساتھ 90 روپے اور مونگرے 10 روپے مہنگے ہو کر 85 روپے میں مل رہے ہیں. سبزیاں جو ہیں وہ مقامی آئی ہوئی ہیں، اس لیے سبزیاں کافی سستی ہیں اور غریبوں کے پہنچ میں ہیں. جو سبز مسالہ جات ہے وہ ذرا مہنگا ہے، یعنی کہ ادرک اور لہسن، اس کی قیمت زیادہ ہے. خریداروں نے یہ بھی کہا انڈوں اور گوشت کی قیمتیں زیادہ ہیں جو عام شہری کی پہنچ سے دور ہو چکی. خریداروں نے مزید کہا چکن پہلے 250 روپے میں ملتا تھا، لیکن اب 2 دنوں میں 45 روپے بڑھ کر 295 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ انڈا 15 روپے سے بڑھ کر 17 روپے کا ہو گیا. گوشت کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، انڈے بہت زیادہ مہنگے ہیں. غریب تو انڈے خرید نہیں سکتا. حکومت کو چاہیے انڈے پر کچھ دھیان کرے غریب کے لیے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اشیاء خوردونوش، انڈوں اور گوشت سمیت ادرک، لہسن کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں. کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. مسلم لیگ نون ڈویژنل آفس میں میٹنگ کا انعقاد. ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کہتے ہیں کہ حکومت مزید نہیں چل سکتی. PTM لانگ مارچ کے لیے تیار ہے. مسلم لیگ نون ڈویژنل آفس میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جہاں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی. مہنگائی کے خلاف PDM کے پلیٹ فارم پر تحریک چلانے کے حوالے سے لائحہ عمل تشکیل دیا گیا. عہدیداروں کا کہنا تھا مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی. ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کہتے ہیں عام آدمی کا جینا دوبر ہو چکا، اب مزید حکومت نہیں چل سکتی. آج مہنگائی عروج پر اتنی ہے کہ کوئی بھی درمیانے طبقے کا بھی، غریب تو بیچارے غریب مسکین جو محنت کش ہیں، مزدور ہیں، وہ تو بہت پسے ہوئے ہیں، لیکن درمیانے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی آج چیخیں مار رہے ہیں. حاجی اکرم انصاری نے کہا PDM تحریک چلانے کے لیے تیار ہے، کارکنان کو بھی کال دے دی، عوام کا جم غفیر حکومت گرانے کے لیے تیار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم PDM کے ذریعے اس قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ہم انشاءاللہ نکلے بھی ہیں، اور مارچ کے اندر جو ہم نے کیا ہے تو اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا ملک IMF کا مقروض ہو چکا، حکومتی پالیسیوں سے عوام کا اعتبار اٹھ چکا. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد.
फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गैस पाइपों में मुंजमद। सईदाबाद के रिहायशियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को उमूर खानादारी अंजाम देने में मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता 4 रोज से गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन फट पड़े। 4 दिन तो ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੋ ਮੈਂ ਡਨ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੈਸ ਵਾਲੇ, ਆ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੋਜ਼ਲ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੂਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਚੱਕਦਾ, ਗੈਸ ਆ ਜੂਗੀ। सुबह चूल्हा जलाया जाता है, गैस नहीं होती। पिछले 2-3 दिन से मैंने देखा है कि जिनके घरों वालों ने ना कंप्रेसर लगाए हुए हैं, तो ये गैस वाले आके चेक करते हैं कि किनका मीटर ज़्यादा चल रहा है, फिर उन पर कार्रवाई करते हैं। अब कंप्रेसर ना चलाए तो और क्या करें, गैस तो आ नहीं रही। अब किसी के मेहमान आ जाए घर में तो वो क्या करे, बाहर से लेने जाए। ठीक है, कंप्रेसर अब लगाना मजबूरी है, सब घर वाले लगाते हैं, बच्चों का, जॉब पे जाने का, सभी मसाइल। अब आपको क्या, ये बैकवर्ड एरिया है, इसलिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का फैसलाबाद का दौरा और DHQ, एलाइड अस्पताल, जनरल बस स्टैंड समेत स्टैंड पनाहगाह का भी अचानक दौरा किया, जहां पर अस्पतालों में तिब्बी सहूलियत की फराहमी, सफाई और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का फैसलाबाद का दौरा, DHQ, एलाइड अस्पताल और जनरल बस स्टैंड पनाहगाह का अचानक दौरा किया। अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी, सफाई और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। एमरजेंसी, यूरोलॉजी, सर्जिकल, डेंगू और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी का एलाइड अस्पताल में सफाई की सूरत हाल पर इजहार अदम इत्मीनान, मरीजों की रहनुमाई के लिए अमला तैनात करने के इकदाम की तारीफ की। चीफ सेक्रेटरी ने मरीजों से सहूलियात की फराहमी बारे भी दरियाफ्त किया। चीफ सेक्रेटरी ने मरीज से सवाल किया कि तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहम की जा रही हैं, इलाज मुआलजे में कोई मसला तो दरपेश नहीं। उधर कमिश्नर ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन जाहिद हुसैन ने शिरकत की, जबकि टोबा, चन्योट, फैसलाबाद, झंग के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान भी शरीक हुए। डिवीजन की तरक्याती ज़ख़ीमों और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने पोलियो, डेंगू खात्मे के लिए इक़दाम, कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तरक्याती स्कीमों से मुल्क में मुआशी सरगर्मियां पैदा होती हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स तरक्याती प्रोग्राम की स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो दें। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने मजीद कहा कि फंड्स के इजरा में अगर कोई मसला हो तो फौरी आगाह करें। सेस फंड के हकीकी मकासद का उसूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। फंड्स गन्ने की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाली सड़कों पर खर्च किया जाएगा। काबज़ीन से सरकारी अराजी और वागुजार कराने के लिए इकदाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी की फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की हिदायत, डेंगू लार्वा की तल्फी और दीगर सरगर्मियों का आगाज करने का भी हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी गई कि फैसलाबाद में 633 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार कराई गई, जंग में 40 एकड़, टोबे में 16,421 केनाल अराजी वागुजार कराई गई, जबकि चिन्योट में 5 एकड़ अराजी गुज़श्ता 3 माह में वागुजार करवाई गई। छोटे और दरमियाने कारोबारी सेक्टर के लिए SME पॉलिसी का ऐलान, आसान शराइत पर बगैर शख्सी जमानत कर्ज दिए जाएंगे। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने हुकूमती इक़दाम को काबिल सताइश करार दे दिया है। छोटे और दरमियाने कारोबारी सेक्टर के लिए SME पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। कारोबारी हजरात को आसान शराइत पर बगैर शख्सी जमानत कर्जे दिए जाएंगे। आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, SME पॉलिसी का ऐलान नागुज़ीर था, आसान कर्जों का ऐलान खुशाइंद है। टॉप ऑफ द लिस्ट ये वाला मुतालबा था। हमारा सेक्टर जो है ये फाइनेंस की वजह से, कैश फ्लो की वजह से ज़्यादातर बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि मशीनें इंस्टॉलमेंट पे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से रज़ाक दाऊद साहब यहाँ पे आए थे, उनसे भी जो मीटिंग हुई थी, उनसे भी यही रिक्वेस्ट थी कि आप हमें बिला सूद और शख्सी ज़मानत पे बगैर किसी चीज़ को प्लज किए हुए हमें जो वो लोन दें। नायब सदर एसोसिएशन मियां तारिक कहते हैं, कर्जों के लिए शराइत इंतहाई सख्त होती हैं, हुकूमत शराइत को मजीद आसान बनाए। इस गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उस पर कोई एतबार ही नहीं है। वजह यह है कि जब हम कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो लोग कहते हैं, जो रिलेटेड पर्सन होते हैं, कि हमारे पास तो इस तरह की कोई पॉलिसी आई नहीं है। और कमर्शियल बैंक की अपनी सिक्योरिटीज़ हैं, वो आपसे जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी लेते हैं, उसके बगैर वो इसको लोन को प्रोवाइड करते ही नहीं हैं। SME सेक्टर से जुड़े ताजर कहते हैं, हुकूमत फैसलों का SRO फौरी जारी करे ताकि बंद पड़े यूनिट्स को चलाया जा सके। पैदावारी लागत ज्यादा होने के बाइस 70% एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पहले ही बंद हो चुका है। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद।
टैक्स की ऑनलाइन बैंकिंग पर 5% रियायत। फैसलाबादी रिवायती तरीकों को छोड़कर जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे। महकमा एक्साइज को 1,15,000 शहरियों ने टैक्स ई बैंकिंग के जरिए अदा किया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 85,000 अफराद ने गाड़ियों का टोकन टैक्स ई पेमेंट के जरिए किया। 30,000 जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए किया गया। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए मजमूई तौर पर 80 करोड़ रुपए टैक्स की वसूली की गई। शहरी अब एक्साइज दफ्तर जाकर कतारों में लगने की बजाय घर बैठे ही टैक्स अदायगी कर सकते हैं। फेस्को का बिजली चोरी के खिलाफ घेरा तंग। गुज़श्ता हफ्ता मीटर टैंपर करके और डायरेक्ट तारें लगाकर 30 बिजली चोर पकड़ लिए गए। 20 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता एक हफ्ता में शहर भर में डायरेक्ट तारें लगाकर मीटर टैंपर करके बिजली चोरी करते हुए सारिफिन को रंगे हाथों धर लिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ तारों में FIR का इंदराज कर लिया गया। फेस्को हुकाम का कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिजली चोरों को न सिर्फ इस्तेमालशुदा यूनिट्स पर जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि FIR का इंदराज भी करवाया जा रहा है ताकि बिजली चोरों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जंग में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां जारी हैं, जबकि महकमे तालीम से पोलिंग स्टाफ की तैनाती के हवाले से लिस्टें तलब कर ली गई। वोटर की तस्दीक का अमल भी जारी है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जंग में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने महकमा तालीम से पोलिंग स्टाफ की तैनाती के हवाले से लिस्टें मांग लीं। महकमा तालीम के अफसरान और स्टाफ को पोलिंग स्टाफ के तौर पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। CEO एजुकेशन मोहम्मद नवाज ने लिस्टें मुरतब करने के लिए DEO सेकेंडरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स लिस्टों की तैयारी के हवाले से भी इकदामात मुमकिन किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 70% से ज़ायद वोटर्स की तस्दीक का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जबकि बकिया की तस्दीक के लिए घर घर मुहिम जारी है। वोटर्स लिस्टों की तस्दीक के अमल में जिला इंतजामिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मामनत फराम की गई है, जबकि शहरियों से भी ताउन की अपील की गई है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद रेलवे रोड पर गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात की भरमार। 8 बाजारों की ताजर बरादरी और शहरी परेशान। मसाइल के हल के लिए ताजरों का इंतजामिया से कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। रेलवे रोड पर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के डेरे। गुमटी चौक को रक्षा और चिंगची ड्राइवरों ने खुद साहता स्टैंड बना लिया। ताजर कहते हैं कि 8 बाजारों तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। 8 बाजारों तक पहुंचने के लिए फैसलाबाद रेलवे रोड से गुजरना लाजमी, मगर गैर कानूनी पार्किंग ताजरों के लिए दर्द सर बन गई। तजावुजात की भरमार से 8 बाजारों तक रसाई भी मुश्किल होती जा रही है। कारोबारी अफराद ने इंतजामिया और ताजरों की कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। ये एक ऐसा कह लो कि ऐसा दाग है, ऐसा मसला बना हुआ है, सर दर्द के मसला बना हुआ है कि ये हल होने को नाम नहीं लेता। हर लोग जो ताजर लोग हैं, हमारे दुकानदार लोग हैं, वो उनकी सोच ऐसी है कि हमारा सामान बाहर नहीं होगा तो बिकेगा नहीं। ताजरों ने मुतालबा किया कि कमेटी मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे। हमारे जो है ना, जो ट्रैफिक के दबाव की वजह से हमारा जो ऐसा लगता है कि बाजार छोटे हो गए, अगर क्योंकि हमारे पास पार्किंग फैसलाबाद में है कोई नहीं है, पार्किंग का निजाम दरम बरम हो गया। ताजर बरादी का कहना है कि रेलवे रोड को हुसाता रक्षा स्टैंड बना लिया, जिसके लिए ट्रैफिक इंतजामिया की मुदाहलत इंतहाई नागुज़ीर है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत कहें या आदम दिलचस्पी, सत्याना रोड टूट फूट का शिकार। रोड की तामीर और मुरम्मत न होने से हादसा मामूल बन गए। शहरी भी फट पड़े। कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ जुबानी दावों तक महदूद हैं। सत्याना रोड मछली फार्म के करीब आए रोज हादसात मामूल होते जा रहे हैं। रोड पर गड्ढे की वजह से गुज़िश्ता 10 दिनों में 20 से 25 हादसात हो चुके हैं। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत गड्ढे को भरने की कोशिश की, मगर कोशिश सूदमंद साबित ना हो सकी। आमर तो फिर दोबारा लगते तो बाकी लगते ही को नहीं। तू थोड़ा नाला भाग पावे तो सारा पानी इतने इतना हो जाता। इतने तो महीना सुकता ही नहीं जा पानी। रोजाना गड्डियां मतलब तो मोटरसाइकिल रोड मिनट छुटते हैं, मिनट 5 मिनट मतलब छुटता। वो तो 2 छाबे भी रखे 3-4 तो फिर वो भी गड्डियां उतो लग वो भी सारे फिस फुस गए। शहरियों का कहना है कि 2 माह से जायद का अरसा हो चुका है गड्ढा पड़े, मगर मुंतखब अवामी नुमाइंदे लंबी तान कर सो गए हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। 2 माह हो गए इसको गड्ढा पड़े हुए, तो MP MNA यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन वो कभी उन्होंने इधर खड़े होने की जहमत नहीं की, किसको देखें क्या मसला क्या नहीं है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि रोड को जल्द अज जल्द तामीर करवाया जाए ताकि मजीद हादसात रूनुमा ना हो। कैमरामैन मौजम के साथ हाशिर बड़ाइच, फैसलाबाद।
फैसला बाद में पीटीआई के रीजनल सेक्रेटेरिएट में गुड गवर्नेंस कमेटी का इजलास। कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन फैजुल्लाह कमोका और सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्ट्रो ने 9 मुंतखब ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। पीटीआई की गुड गवर्नेंस कमेटी के इजलास में कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन फैजुल्लाह कमोका, सूबाई वजीर कॉलोनीज ख्याल अहमद कास्ट्रो ने खुसूसी शिरकत की। जिले सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस साबिक एमपी अब्दुर्रहमान राना, कन्वीनर गुड गवर्नेंस कमेटी सलमान शौकत, मियां साकिब अल्ताफ, अजहर नसीम विर्क, हाफिज अताउल्ला, पीटीआई शोबा खवातीन सिटी की जनरल सेक्रेटरी शबाना खुरम समेत दीगर ओहदेदार शामिल हुए। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से इत्तेहाद उम्मत के मौजू पर सेमिनार। शुरका ने मजहबी तफरुकात और तासुबात से बालातर होकर वहदत का दर्स दिया, जहां पर इत्तेहाद उम्मत सेमिनार की सदारत रुकने मरकजी सियासी कमेटी मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज यासिर मतनी, मौलाना बहादुर अली रिजवी और अहमद निसार कादरी भी मौजूद थे। सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहाद उम्मत के लिए जातियात के खौल से निकलना होगा। फैसलाबाद मास पेंट्स ने क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी में गिफ्ट्स तकसीम किए। सीईओ मास पेंट्स शाहिद बाजवा और डायरेक्टर अंश शाहिद बाजवा ने गिफ्ट्स तकसीम किए। मास पेंट्स हर खुशी में शरीक होता है। क्रिसमस के हवाले से मास पेंट्स की जानिब से मसीही बरादरी में गिफ्ट तकसीम किए गए। सीईओ मास पेंट्स शाहिद बाजवा का कहना था कि मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। ये हमारे मसीही बरादरी अक़लियती टोटल जो हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह जितने भी हैं, हम इनके लिए इनकी खुशियों में शाना बशाना साथ हैं। डायरेक्टर मास पेंट्स अनस शाहिद बाजवा और सीईओ अल-फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाला एहसान वड़ाइच ने गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। अनस शाहिद बाजवा का कहना था कि मसीही बरादरी के लिए मास पेंट्स की जानिब से तोहफा है। लाला एहसान वड़ाइच बोले, मास पेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। मास पेंट ने का बड़ा अच्छा ये कदम है कि उन्होंने ये फेडमिक में माशाल्लाह ये काम शुरू किया और चक जुमरा में ये वैस स्टोर के नाम पे आज जो है क्रिश्चियन जो बरादरी है इसके लिए उन्होंने प्राइज़ दे रहे हैं। हमने क्रिसमस के मौके पे मसीह बरादरी को जो है ना वो छोटे से गिफ्ट जो है उनसे नवाजा है, तो इनकी हम खुशियों से बराबर के शरीक हैं। मसीही बरादरी को क्रिसमस के हवाले से तोहफे देने की तकरीब मास पेंट्स के रजिस्टर्ड डीलर्स और शेर रोबानी ट्रेडर्स पर मुनक्किद हुई। अवैस तारक भट्टी और तारक भट्टी ने भी शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। टोबाटेक सिंह के गिरदोनवाह में गन्ने से गुड़ बनाने का अमल शुरू हो चुका। दौरे जदीद में किसान रिवायती तरीकों से गुड़ बनाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। किसान रिवायती तरीकों से गुड़ बनाते चले आ रहे हैं। सबसे पहले गन्ने को मुकम्मल साफ करने के बाद बेलने पर रस निकाला जाता है, जिसे पंजाबी में रो कहते हैं। इसको बड़े से कड़ाहे में डालकर भट्टी में आहिस्ता आहिस्ता गर्म करके गाढ़ा किया जाता है। तकरीबन 1.5 घंटे तक रस पककर तैयार हो जाता है। गन्ना लैके इनू लिया के बेलने ते पीड़ी दा, पीड़ के रोह बनाई दी है, फिर इहदी रोह पुनी दी है, साफ करी दी है, फिर लिया के इहदे च पाई दी, फिर गुड़ बनाई दा। फिर उस तो बाद जेल्ले पक जांदी है फिर ਇਹਦਾ ਨਖਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਖਲਾਈ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਪੀਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਨੇ। 8 ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਗੰਢ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। गंड च पा के तो फिर उन्हें हिला देना, ठंडा हो जाना, फिर वो गुड़ बन जाना। रस को ठंडा होने के बाद पेड़ों की शक्ल दी जाती है और गुड़ को बतौर सौगात पेश किया जाता है। शहरी दूर दराज से गुड़ खरीदने के लिए आते हैं। चीनी के मुकाबले में गुड़ को तरजीह देते हैं और बतौर तहाइफ दोस्त अहबाब को भी देते हैं। गुड़ एक नेचुरल चीज़ है, उसके अगरचे हम एक किसान या जो हम खपत हो रही है इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम ये चीनी के अजाब से निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ और चीनी जो अभी बराबर जा चुका। बगैर केमिकल्स के तैयार शुदा गुड़ बहुत अफादियत का हामिल है और लोग गुड़ को पसंद भी करते हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के हमरा, रिजवान खान, सिटी 41, कमाली। फैसलाबाद के गठवाला फार्मर्स मॉल में सजा 5वां गुड़ मेला और सियासी और कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने देसी खानों से खूब लुत्फ उठाया। गटवाला फार्म्स मॉल में 5वें गुड़ मेला का इनेकाद किया गया। गुड़ मेला में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मनीर, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान, सदर विमेन चैम्बर निगत शाहिद भी शरीक हुई। उन्होंने कहा कि गुड़ मेले का इनेकाद खुशाइंद है। MNA फैजुल्लाह कमोका ने भी गुड़ मेला का इनेकाद की काविशों को सराहा और कहा कि हुकूमत ऐसे इवेंट्स को फरोग देने के लिए हम वक्त तैयार है। मेले में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा व तालबात ने शिरकत की और टैबलोस पेश किए। गुड़ मेला में सवालात के जवाबात देने वाले शहरियों को इनामात भी दिए गए। इतना बड़ा विलेज फेयर जो है गांव की तर्ज ज़िंदगी को उजागर करने के लिए यहाँ पे किया गया है, जहाँ पे फैमिलीज़ आई हैं, जहाँ पे सारे ख़ानदान आए हैं, बच्चे आए हैं और इन सब ने कमाल का एंजॉय किया है। देसी खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, गुड़ वाले चावल मौजूद हैं, गुड़ मौजूद है
और बहुत सारी चीज़ें जो कि हम गांव में खाया करते थे वो सारी की चीज़ें मौजूद हैं। गुड़ मेला में बनाए गए फूड कोर्ट में शहरियों का हजूम रहा। शहरियों ने गुड़ की बनी जलेबियां खाई, मठियाई के साथ साथ साग, मकई और बाजरे की रोटियां भी जी भर कर खाई। शहरियों का कहना था कि इस तरह के देसी खाने ही हमारी पहचान है। आज मेले से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये हमारी देसी चीजें, हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। लोग जंक फूड की तरफ बहुत आ रही हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जंक फूड की तरफ बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो देसी का है मजा है ना, वो देसी में ही है। गुड़ मेले में मिट्टी के बर्तन, सब्जियों के बीज, रवायती खेलों का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर फजील अहमद के साथ हाशिर उड़ाइज, फैसलाबाद। दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा फैसलाबाद में कद सिर्फ 2.5 फुट, कीमत इतनी कि सुनकर आपके होश उड़ जाएं। इस छोटे से घोड़े से मिलवा रहे हैं अब्दुर्रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि शौक का कोई मूल नहीं होता। दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा जिसका नाम पोनी मिनिएचर है, फैसलाबाद के शहरी का है, जिसकी खसूसी देखभाल की जाती है। नाज़रीन, ये पोनी मिनिएचर घोड़ा क्या खाता है, क्या खुराक है इसकी, और बाकी जो बड़ा घोड़ा उससे क्या फ़र्क है, ये जो देखभाल करता है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी तोती, मुझे बताइएगा क्या इसमें फ़र्क है और कितनी खुराक खाता है? ये 10 किलो चारा खाता है, 2 किलो दाना खाता है सुबह शाम में, और इसको नहलाते हैं। तो जो इसकी खुराक है, जो सेवा है, वो बड़े घोड़े जैसी करते हैं। खुराक में कितना फ़र्क है? खुराक में काफ़ी फ़र्क है। वो तो 2 मन लूसन खाते हैं, ये 10 किलो खाता है। घोड़े के मालिक का कहना है घोड़ा बच्चों के लिए खसूसी तौर पर लाहौर से मंगवाया है और उसकी कीमत 6 लाख रुपए है। नाज़रीन, मिनिएचर घोड़े का मालिक उमर अशरफ हमारे साथ मौजूद है। उमर साहब, मुझे बताइएगा कहाँ से ये शौक पैदा हुआ और कितने में लिया और कहाँ से लिया? ये लाहौर से लेके आया हूँ मैं। ये मैंने लिया 6 लाख में, और इसकी हाइट है 31 इंच। ये जो बड़े घोड़े हैं इनकी 66 इंच हाइट है, उसका आधे से ये कम हाइट में है घोड़ा, और फुल ट्रेंड घोड़ा है। ये बच्चों के लिए लिया है, मेरा बच्चा 4 साल का, उसको राइडिंग सिखा रहा हूँ इस पर। इसका फ़ायदा क्या होगा और बाकी से फंक्शन क्या मुख्तलिफ है या सेम? ये बड़े घोड़े वाला फंक्शन है, इसका भी राइडिंग करनी होती है। बड़े घोड़े में ज़रा बच्चा डरता है, इसमें डर खौफ दूर हो जाएगा बच्चे का, इस वजह से ये लिया मैंने। माहिरीन कहते हैं पोनी मिनिएचर घोड़े की ब्रीडिंग की जाए तो शौकीन अफराद इसे अपने स्तब्बल का हिस्सा बनाने में फख्र महसूस करेंगे। यह दुनिया का सबसे छोटा मिनिएचर घोड़ा जिस पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपनी राइडिंग सीख सकते हैं। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ अब्दुर्रहमान गुज्जर, फैसलाबाद।